हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। इसमें हम आज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। यानी देखा जाए तो 12वां चैप्टर जो इतिहास का है उसमें प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, खास तौर पे जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए। कहते हैं इसमें बहुत कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात मैं साफ कर दूं कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important next topic here central administration. There is the most important here central administration, the part of the administrative system and institution chapter. There is the most important here, and there is already mentioned the administrative system was headed by the Sultan, and there was a number of the department which were to the assigned different responsibility, and this department were to the managed by the influential of novel, and we will be provide a brief account of the few department. The first topic there is according administration here or central administration or Bazarat. The Wazarat here is after the Sultan. Most important office was the Diwan-e-Wazarat, is head by the Wazir. The head of here Wazir. Wazir is a recently time is a prime minister. The prime minister is called to the Wazir. It was a key of position in the royal court, and his role was the general is a superior over all departments, and thus was one of the four important department head, and he was the chief advisor of the Sultan. Today time there is the advisor of the president, there is a prime minister of advisor, there is a chief advisor of the Sultan. Who is the chief advisor of Sultan? There is a Wazir. The main function of the Wazir were to took after the financial organization of the state. There is the most important work here, and give to advice to the Sultan, and one is the occasion to the or lead to military expeditions at the Sultan, and we had he is also surprised to the payment to the army. The Bazawat or the office of the Wazir also keep a check on land review and collection, maintaining a record of all the income and expenditure, and created by there is a state, and thus a control or recorded the salary of all royal servant, and handled there is the charitables is a donation such as a wolf, ilam, and sector, and further mint of the intelligence and department the royal builds, and their body affiliated to the royal court were supervised by the Bazawat, and the Wazir has direct access to the Sultan, and it was on his with thumbs and sanitary and the royalty that is a position of the Sultan dependent to the greatly. There is a several other department which is a work to the under to the is a Bazawat. There is a interested with the specific function, and this include the Mustafi A. Malik, means is the auditors of general, and the Musarif A is a Mumalik is accountant journal, and Mazamu
Dar, a keeper of the loan and the balance for the treasure. There is the most important here. There is a part of administrative center, and later some other of office bearer both is under to the supervisions of the bazarat like a divane vaduruf is to mean to the supervise of expenditure, and divane Mustakha Raz to took into the area of the revenue of payment, and Divane Amir Kohi to be a wearing to the uncultivated land into the cultivation through state sport. And the next year, the Divane is ours. There is the most important department of center. This department was set up to look after the military organization of the empire. It was headed by the Ariz A. Izmul Laik, and he was responsible for the administration of military affairs. He maintained the royal continent and is a recruited their soldier and ensured that the disciplines and there is a fitness of the army. Inspected there is a troops is maintained by the Ikta holder. Examine there is a horse and the branches them with their royal insignia. And during time of war, the earth is arranged a military provision and transportation and administer the army at the war and provided to constant supplies and was the custom done of a war boot. Botis and Alauddin Khalji introduced the system of dag, branding and hulia description. That is the most important here. Important to the UPSC exam, there is a Alauddin Khalji introduced the system of dag is a branding and the hulia is a description. Alauddin Khalji and cash payment of the soldier in order to strengthen his control over to the army. The continent of the strength at the Delhi was called is a Hasanam e Quail and provisional of the continent where is called Hasanam e Atraf. The next here is the most important here department Divane Isha. The Divane Isha is the most important here, and this department is looked after the state correspondence. It was headed by the Davir A. Khas. He is drafted as the deputy to the royal order and received the report from the various officers. The Davir was the formal channels of the communication between the center and other regional of empire, and he was also as a sort of private secretary of the Sultan and was responsible for the retain the Fremen. And Fremen, there is the most important here. The Baris A. Mulekix was the head of the state new gatherings and dealt with the intelligences there. He had to keep information of all that is happening in the Sultan. And at the local level, there is a bearer is a who used to the send the regular new is a conveyings there are matters. There is a next here a Divan A Risalat. There Divan A Risalat is the most important here, and there is a this department deals with their administration of justice. There is a most important department here, this Salat, and it was headed by Shada Ast Sada, who was also the Quasi A Malik. He was the highest religious officer. There is a highest religious officer and took care of the ecclesiastical affair. He also is appointed to the Quaza, is a judge, and the approval various is a charitable grant like a work, wazifa, idara, etc. The Sultan was the highest court of the appeal in the both civil and criminal matter. The next to him was the Qazi Malik. There is a Mutasib, is a public censor. An assistant there the judiciary department, and there is a main task was to be seen that there was no public interference of their tent of the Islam. He was also to supervise and enforce the public moral and conduct. The next state is the other department. The other department is the most important other department. Apart from this year, there was a number of small departments at the center which help in the everyday administration of the empire. Vakil Adar is looked after their royals
household and manage the personal service of Sultan. Amir Haji is located to the after the royal ceremonies, and he used to the act as on the intermediate between the Sultan and the subordinate of the officially, and there is a between Sultan and the public. Shah-e-Jandar is looked after the royal body is a goddess. Amir-e-Akur is looked after the establishment of the horses, and there Sana is feel look after the establishment of elephants. Amir-e-Mazil is looked after their arranged to the meeting the special ceremony. The royal workshop is a Kharakhanas is a play on the important role in the administrative system of Sultanate. The need of the royal is a household where made through the khankhans. There is a khankhans where to the two types, the manufactories and the storehouse. The manufactories and the storehouse, they are the most important part of the administration. Under the Firoz Tughlaq, and there were also is mainly as a 36 khankhans. The each Khans was superior by the noble who had to the rank of the Malik and Khan. The Mustafrif is the responsible for the account and accepted as the immediate of supervisor in the various department. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रशासन। देखिए केंद्रीय प्रशासन जैसे कि आपको पता है, जैसे आप के समय अभी जो है प्रेजेंट टाइम में प्रशासनिक क्षेत्र है, केंद्रीय प्रशासन है। कुछ हद तक देखा जाए तो जो है मुग़ल के टाइम हो चाहे अकबर का टाइम या किसी के भी टाइम पीरियड में आप ले लो, उसी तरह से केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, सिर्फ नाम बदला हुआ था, नाम अलग अलग हुआ करता था लेकिन कार्य प्रणाली एक जैसे ही थी। कहते हैं आज की प्रणाली सिस्टम देख लो या पुराने समय का देख लो, बखूबी एक जैसा ही था। तो इसी विषय पे जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन विभाग हुआ करते थे और उनका क्या कार्य होता है। तो ये काफ़ी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। पुराने समय के जो विभागों के बारे में जानना कई मायने में जो है महत्वपूर्ण रहता है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान सुल्तान होता था, जिसके विषय में हम चर्चा भी किए थे। उसके बाद अनेक विभाग थे जिन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे और इस विभागों का प्रबंधन जो है प्रभावशाली अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था, क्योंकि आपको पता ही है कि अभिजात वर्ग बहुत महत्वपूर्ण थे। इवन कि सुल्तान को हटाने में भी जो है अभिजात वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था। और हमने देखने को भी हमें मिला था कि कई अभिजात वर्ग से निकल के जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र राजा भी घोषित कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। यहाँ तक कि बलबन भी अभिजात वर्ग के अंतर्गत ही कार्य करता था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम कुछ विभागों का जो है लेखा जोखा यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वजारत। देखिए वजारत क्या है, जिसे शब्द सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा शब्द की वजारत होती क्या है। कहते सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य दीवान वजारत था, यानी जिसका प्रधान वजीर होता था। अब वजीर से तो आप समझ गए होंगे ना, प्रधानमंत्री के विषय में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर आलम जैसे सुना ही होगा आपने कभी न्यूज़ में वजीर आलम, इसका मतलब प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर की जा रही है, जो वजारत विभाग का जो है प्रमुख हुआ करता था। और इसका कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू होता था, जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री का होता है, उस समय भी ऐसे ही कार्य प्रणाली वहाँ पर वजीर का हुआ करता था। शाही दरबार में ये मुख्य पद पर होता था। देखिए शाही दरबार में इसका क्या पद था, मुख्य पद था। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में भी पूरे मंत्रियों का जो मेन हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। सेम वहाँ पर भी जितने भी दरबारी होते थे उसका प्रमुख जो होता था वजीर ही हुआ करता था, और उसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान जो है पर्यवेक्षक की होती थी, यानी जांच पड़ताल करने वाली होती थी। लेकिन यह 4 महत्वपूर्ण भागों का प्रधान होता था। यह सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था। जैसे कि आपको भी पता है कि राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है। आपके समक्ष क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो सलाहकार कौन होता है, तो आपको बेखूबी इसका आंसर दोगे कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर जो है सुल्तान का मुख्य सलाहकार वजीर होता था।
तो वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर का मुख्य कार्य राज्य के जो है वित्तीय संगठन की देख रेख करना था, सुल्तान को सलाह देना था और कभी कभी सुल्तान के आदेशों पर सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व भी करता था। सेना को किसी किया जाने वाला भुगतान इसी के देख रेख में होता था और वजारत या वजीर का कार्य भूमि के जो है राजस्व वसूलने पर भी निगरानी रहता था। यानी देखा जाए तो ओवरऑल सभी चीज़ों पर इसी का नियंत्रण होता था। राजा के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा करता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरियों को जो है तनख्वाह पर नियंत्रण भी रखता था अथवा उसका लेखा जोखा भी रखता था तथा जो है धर्मार्थ चंद जैसे वक्फों और इनामों आदि पर भी नियंत्रण इसी का होता था। इसके अतिरिक्त वजारत द्वारा जो है टकसालों, सूफियों और विभाग से शाही इमारतों और शाही दरबार से संबंधित निकायों का भी देख रेख किया जाता था। वजीर के सुल्तान एक सीधी पहुंच थी और यह उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वफादारी का परिणाम ही था कि सुल्तान जो है वजीर पर अधिक निर्भर रहने लगता था। तो ये तो जनरली सी बात है कि सारे के सारे जितने भी सुल्तान हुए वो सब के सब वजीर पे ही निर्भर हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है किसका, वजीर का, जो कि वजारत का विभाग का मुख्य होता था। कहते वजारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य विभाग भी थे जिन्हें विशेष कार्य सौंपे गए थे। इसमें जो है मुसाताफ़ी जो है मुमालिक यानी महालेख परीक्षक, मुसारिफ जो मुलालिक यानी प्रधान लेखाकार, उसके बाद था मजू मदार यानी खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा जोखा रखने वाला सम्मिलित थे। कुछ समय बाद दीवाने जो है वकूफ़ यानी व्यय का हिसाब रखने वाला बनाया गया। फिर दीवाने जो है मुस्त यानी खराज यानी राजस्व भुगतने में शेष रह गई राशि की जांच करने वाला। दीवाने अमीर यानी कोई यानी राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाने वाला। ऐसे कुछ अन्य कार्यकाल जो वजारत देख रेख में लाया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने अर्ज। अब यहाँ देखिए हम तो हमारे समक्ष है दीवाने अर्ज। कहते हैं साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी और इसका प्रधान अरिज जो है मुमालिक होता था और यह सैन्य कार्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। यानी सैन्य कार्य के लिए सारे जो था दीवाने अर्ज के अंतर्गत ही कार्य होता था। यह शाही सेना के देख रेख भी करता था, सैनिकों की भर्ती भी करता था, सेना के अनुशासन बनाए रखता भी था और उनके जो है उपयुक्त रहने की क्षमता का ध्यान भी रखता था। इक्तधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण भी करता था और घोड़े की जांच करता और उसकी पीठ पर शाही निशान लगाता था। अब कह सकते हो दीवाने अर्ज की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी। युद्ध के दौरान अरीज सेना को खाद्य सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति जारी रखता था तथा लूट के माल को अपनी निगरानी में रखता था। अलाउद्दीन खलजी ने जो है दाग यानी दाग लगाना और जो हुलिया चित्र प्रणाली तथा सेना पद अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सैनिकों में जो है नगद भुगतान का आरंभ किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि दाग और जो हुलिया प्रणाली किसके जो है शासनकाल में लगाया गया और किसने जो है लागू किया था। तो आपको याद होना चाहिए कि अलाउद्दीन खलजी ने जो है दाग प्रणाली और हुलिया प्रणाली का जो है विकास किया था और सैनिक में नगद भुगतान देने के प्रावधान भी जो है अलाउद्दीन खलजी द्वारा ही किया गया था। दिल्ली में रहने वाले सैन्य दल जो है हशम ए क्लब कहलाता था, जो कि दीवाने अर्ज के महत्वपूर्ण पार्ट में से एक था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने ए ईशा। देखिए दीवाने ईशा क्या है, ये बहुत ही आपको विचित्र वर्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली सी बात है, पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे जब आपके सिलेबस में है। तो ये कहते ये विभाग राज्य के पत्रचार की देखरेख करता था। समझ गए कि ये समाचार विभाग का देखा रेखा करता था, उसे दीवाने ईशा कहते थे। इसका प्रधान दवीर ए खास होता था। देखिए दवीर ए खास यानी एडिटर, समझे। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह शाही फरमानों के जो है मजमून तैयार करता था, उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों के रिपोर्ट प्राप्त करता था। दवीर जो है साम्राज्य केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम माना जा सकता है और यह एक किस्म के जो है सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान भी लिखता था। यानी देखा जाए तो फरमान लिखने का काम ही दीवाने ईशा का पास होता था, जो कि कोई भी फरमान लिख सकता था। यानी राजा जो कहता था वो फरमान जो है लागू करता था।
वरी ए मुलालिक्स राज्य के समाचार एकत्र करने वाला और गुप्तचर कार्यों का प्रधान हुआ करता था और उसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी रखनी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर वरीद होते थे जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित समाचार भेजा करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवान रिसालत। देखिए, दीवान रिसालत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। कहते हैं यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था, यानी यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था और इसका प्रधान सदर होता था जो कि काजी या मुलामिक भी था। यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और वह पुरोहितों का कार्य भी देखा करता था। वो काजियों को भी नियुक्ति किया करता था और विभिन्न धर्मार्थ अनुदानों जैसे कि वक़्फ़, वजीफ़ा, इदरार आदि की जो अनुमोदन भी प्रदान किया करता था। यानी वे बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की स्वच्छ अदालत सुल्तान था और इससे जो है अगला काजी जो है मालिक और जो है मुतासिव्य यानी सार्वजनिक सेंसर न्यायिक विभाग को सहायता प्रदान किया करते थे। इसका मुख्य कार्य यह देखना था कि कोई इस्लाम के सिद्धांत के उल्लंघन तो नहीं कर रहा है और वह नैतिक सिद्धांत और आचरण की देखरेख करता था और उसे लागू भी किया करता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अन्य विभाग। कहते हैं अन्य विभाग का भी बहुत कार्य था, जिसमें इसके अंदर केंद्र में अनेक छोटे छोटे ऐसे विभाग थे जो साम्राज्य के जो है रोज़मर्रा के प्रशासनिक कार्य में सहायता भी किया करते थे। जैसे वकील दार शाही परिवार के देख रेख करता था और सुल्तान के निजी कार्य भी किया करता था। अमीर हाजिब शाही समारोह का जो है काम देखता था और यह सुल्तान और सहायक कर्मचारी तथा सुल्तान और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य भी करता था। सर ए जनादार शाही अंगरक्षकों के देख रेख करता था और अमीर अखूर यानी अस्तबल का जो है रख रखाव किया करता था। शहनाह ए फिल यानी जो है हाथियों की देख रेख किया करता था। अमीर मजलिस जो है बैठकों और विशेष समारोह के आयोजनों की व्यवस्था किया करता था। सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली में करने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया किया करता था और शाही परिवार की आवश्यकताएं कारखानों में पूरी की जाती थी। ये कारखाने दो किस्म के होते थे, एक तो होते थे उत्पादन करने वाले और दूसरा हुआ करते थे भंडारण करने वाले, यानी भंडारण घर। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगभग 36 कारखाने हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। प्रत्येक कारखाने की देखरेख मलिक अथवा खान की श्रेणी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। मुतासरिफ के लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष जो है पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया करता था। तो कई मायने में देखा जाए तो मैं जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के बारे में हमने चर्चा किया, जो जानने की कोशिश किया कितने विभाग महत्वपूर्ण हैं और क्या कार्य करते थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको
फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।